ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने लाइफ प्रोसेस के इस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक का नेक्स्ट सब पार्ट, दैट इज़ रेस्पिरेशन। बिफोर लास्ट वीडियोस we already discussed about the nutrition in plants and animals, digestive system of human beings, different parts, their structure and related function of our alimentary canals, and you already submit their Google Sheets through link and very good response of you related our topics. Now in next videos we discuss the next point, that is the respiration. जैसा कि पहले बताया हुआ है, इस चैप्टर में टोटल 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उसमें से एक पॉइंट अपने डिस्कस किया है जो था न्यूट्रिशन। अभी नेक्स्ट पॉइंट है वो रेस्पिरेशन है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज सर्कुलेशन, देन एक्सक्रीशन, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। तो बिफोर वी डिस्कस next point, first of all, what do you mean by the respiration? Just in this portion we just discuss just a definition, just a introduction, and after their physiology process in plants as well as animals. क्लास 10th के लेवल की बात करें, आप लोग 6, 7, 8 या 9 क्लास तक आप डिस्कस कर चुके होंगे बायोलॉजी पोर्शन में कि रेस्पिरेशन क्या है। जनरली अपन स्मॉल लेवल तक ये सुनते हैं कि ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, दैट इज़ द रेस्पिरेशन। बट नाउ इन योर सिलेबस वी डिस्कस स्लाइटली कॉम्प्लेक्स मेथड, either slightly complex portion of the respiration. We discuss just a molecular level. What are the source of carbon dioxide, types of the respiration, importance of the respiration, what are the importance, it means formation of the ATPs, that is the adenosine triphosphate, that is our currency of the energies. These are the extra things we discuss in your portion. So let us start now our topic, that is respiration. स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले वाले जो पोर्शन है उसको अच्छे से डिस्कस करें, NCERT बुक को अच्छे से लाइन टू लाइन रीड करें, वीडियोज़ को अच्छे से देखें, जो PPT या स्लाइड्स आ रही हैं उनको आप नोट्स के रूप में तैयार करें, टाइम टू टाइम आप उनको सेंड करें, और डाउट हो तो आप फ़ोन के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट करके उनको सॉर्ट आउट करें। तो इस रेस्पिरेशन में सबसे पहले अपन देखते हैं, एक इक्वेशन होती है C6H12O6 प्लस 6O2, इट विल बी कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP। ये स्मॉल लेवल तक अपन बात कर चुके हैं, जो आगे भी आएगी। रेस्पिरेशन जनरली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो मेनली सेलुलर लेवल की बात करें तो सेल्स में प्रेजेंट होगा। बाकी जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बींग्स लंग्स की बात करें, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसमें ऑक्सीजन इनटेक होके और उसके थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज भी होगा इन द फॉर्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन। तो बिफोर वी डिस्कस जस्ट ए definition, respiration is the process by which food is burned in the cell of the body with the help of oxygen to release energy. It takes place in the mitochondria of the cell. It means respiration में देखें अपन तो respiration is the process by which food is burned. Here food is glucose C6H12 and O6, that is the glucose.
In the cell, it means cell. In the body, you know very well, cell already present in the body. With the help of oxygen, it means plus oxygen, that is according to your definition. To release energy, here release, that is the energy in the form of ATP. It take place in the mitochondria of the cell. तभी तो अपन बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज एट दैट इज प्रोड्यूस, power house of the cell, that is produce what, energy, and here energy in the form of ATP, that is full form adenosine triphosphate. So first of all, here is two raw material. Number one is, that is the glucose, and number two is, that is the oxygen. These are the two raw material, and that produce number one thing ATP, number two thing carbon dioxide, and number three things, that is the energy. So these are the प्रोडक्ट एंड दीज आर द रॉ मटेरियल. तो इसकी इक्वेशन देखिए अपन, तो इक्वेशन में यूँ मेंशन कर सकते हैं C6 जो आगे भी पोर्शन में आएगी H12O6 प्लस 6O2, इट विल बी कन्वर्ट इनटू 6H2O प्लस 6CO2, it will and plus produce ATP, that is energy. तो दैट इज द रेस्पिरेशन, यानी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फूड का बर्न हो रहा है. हियर फूड क्या है, दैट इज द ग्लूकोज, और किस में, सेल में, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, और क्या रिलीज की, एनर्जी. और ये प्रोसेस कहाँ पार्टिसिपेट लेगा, इन द फॉर्म ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. दैट इज रिलेटेड पोर्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ the energy released during respiration is used to make ATP molecules, adenosine triphosphate, from ADP molecule, that is adenosine triphosphate, and inorganic phosphate, that is PI, either inorganic phosphate. Now another things, that is what, the energy released during respiration make ATP, that is the ATP, फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये एटीपी किससे बन रही है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, शॉर्ट में आईपी भी लिख सकते हैं इसको, आईपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एडीपी. एडीपी हियर इज डी मीन्स डाई, एंड टी मेंशन हियर इज ट्राई, एंड ट्राई मीन्स 3 molecules, and डाई मीन्स 2 molecules. तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग respiration is used to ATP molecule adenosine triphosphate, from ADP molecule adenosine diphosphate, and inorganic phosphate. That is the currency of the energy. Very very important question related to competitive exam. Also mention their full name, adenosine triphosphate, that is currency of energy. Energy is stored in the cells in the form of ATP molecules. When the cell need energy, ATP is broken down in the presence of water to form ADP, and energy is released. That is important things. यानी ये जो ATP बना है ये स्टोर होगा अपनी सेल्स में, किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में. जब अपने को ज़रूरत पड़ेगी, वी नीड सेल्स एनर्जी, ATP कन्वर्ट होगा किस में, ADP में, और साथ में एनर्जी में रिलीज करेगा. तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग्स. अपन कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज अपन रन कर रहे हैं, कुछ जॉब में कुछ एक्सरसाइज पे या एक्सरसाइज हो रही है, जॉब पर जा रहे हैं, या अदर थिंग्स कोई भी लाइफ का पार्ट है जिसमें अपन कोई भी डेली रूटीन में वर्क कर रहे हैं, तो अपने को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई न रूप में अपने को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मिलती है अपने किस रूप में, एटीपी के रूप में. ये जनरली इंट्रोडक्शन था रेस्पिरेशन के रूप में. रेस्पिरेशन क्या होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, इसको अपन एनर्जी के रूप में किस लिए लेते हैं. अभी अपन टाइप्स की भी बात करेंगे. और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो जनरली सेलुलर या कह सकते हैं बायोटिक या एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. एक तरह से एरोबिक इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, जिसको अपन डिफरेंशिएटेड मैटर में डिस्कस करेंगे, दोनों में कंपेयर भी करेंगे. तो बेसिकली यहाँ फोकस किया गया है वो एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
एयर, इट मीन्स हियर इज ऑक्सीजन। जो ह्यूमन बींग्स या जो भी ऑर्गेनिज्म होगा मैक्सिमम उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे जो पोर्शन दिया हुआ है जिसमें एक तरह से टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो मेंशन किया हुआ है उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, स्टूडेंट्स आपको वीडियो वगैरह पोर्शन वगैरह रिलेटेड नोट्स कहीं भी आपको इंटरनेट यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल होंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो कंसेप्ट क्लियर करना है, अच्छे से समझना है। तो कोशिश कीजिएगा आप अच्छे से अच्छे समझें। बाकी चीज़ें आपको मटेरियल बुक्स में भी मिलेंगे और कहीं भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो अपने कंसेप्ट क्लियर करें और समझने पे या अंडरस्टैंडिंग होने में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस पोर्शन देखें तो देर आर द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नंबर वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नंबर टू इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। According to their name, aerobic respiration, also known as oxy-respiration, and anaerobic respiration, also known as anoxy-respiration. Oxy, it means just according to their name, oxy, it means presence of oxygen. And anaerobic respiration, according to another name, their name, that is anoxy. It means oxygen absent. It means absence of oxygen. So number one thing, there is the basic difference between the aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration just present in the presence of oxygen, and anaerobic respiration just absence in oxygen. That is number one thing. तो फर्स्ट वी डिस्कस एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेशन। ये बात मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बता दी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किस में प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रेजेंट होगा, यानी उसको होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी, यानी ये क्या करेगा? ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। किसके कंपेयर? एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर। द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दैट इज नंबर वन। एनअदर थिंग्स, थर्ड थिंग्स, इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो थ्री होंगे, जो अपन ने पहले वाली स्लाइड में मैंने बताई थी। उसमें ये बात मैंने मेंशन भी की थी कि ये जो स्लाइड है या रेस्पिरेशन है वो फोकस कर रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन को, बिकॉज दिस वन इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, and mitochondria is the powerhouse of the cell, and powerhouse of cell, it means produce more energy through the respiration. That is important things. Another point, it take place in most organism है, that is important things. It take place most organism, it means maximum जो organism है उसमें क्या होता है? ये ज़्यादातर इस टाइप का रेस्पिरेशन होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको सरवाइव करने के लिए रेस्पिरेशन चाहिए, और रेस्पिरेशन में ज़्यादातर वो क्या करेंगे? एक तरह से अपन ऑक्सीजन का यूज़ करके वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो हियर इज नंबर वन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नंबर टू, देर आर द थ्री प्रोडक्ट्स। नंबर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर टू इज वाटर, एंड नंबर थ्री इज एनर्जी. Energy is the main product, that is the currency of energy in the form of ATP, and third one, that is the present in the most of the organism. We also in our human beings and maximum organism also have such type of respiration. In aerobic respiration, glucose is converted into pyruvate in the cytoplasm in the presence of oxygen, and then in the presence of oxygen pyruvate is converted into carbon dioxide and water and energy in the mitochondria. That is another very 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 important things. इसको समझने के लिए अपन एक नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, आगे वाली स्लाइड में उसकी बात करते हैं, तब आपको ये पोर्शन समझ में आएगा। उससे रिलेटेड मैं इस स्लाइड के पोर्शन में आऊँगा, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा तभी ये पोर्शन आपके समझ में आएगा। तो अभी अपन स्टूडेंट्स देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें टू टाइप्स की बताए। फर्स्ट है अपन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे।
जिसमें ये पोर्शन बताई दिया आपको। एंड अदर थिंग्स, इस स्लाइड्स को मैंने बात की थी कि अपन इस स्लाइड्स के बारे में बात करेंगे। जनरली कोई भी ग्लूकोज मटेरियल होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा या अपन फूड लेंगे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। एक बार अच्छे से समझना, यानी कोई भी होगा वो साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। यहाँ पर इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, बोथ एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म and this glucose will be converted into the pyruvate, also known as pyruvic acid. Pyruvic acid. And in this कार्बन 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसमें, और ग्लूकोज के पास प्रेजेंट होते हैं कार्बन 6। और यहाँ पर अपन देख रहे हैं इसके पास कार्बन होता है 1। यानी सीधी सी बात समझना, ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन 1 वाले में कन्वर्ट होना है। उस 1 कार्बन में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, उससे पहले ये कार्बन नंबर 3 का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दैट इज नोन एज पायरुवेट, ऑल्सो नोन एज पायरुविक एसिड, उसमें कन्वर्ट होगा। ये जो प्रोसेस होगी वो कहाँ प्रेजेंट होगी? इन साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इट मीन्स दिस ग्लूकोज विल बी कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट, यू कैन आल्सो से पायरुविक एसिड। आफ्टर दैट इज द फेट ऑफ पायरुवेट in different types of respiration, either presence or absence of oxygen, depends on the presence or of absence of oxygen, that is the fate of pyruvate, that is the important things। यानी ये पायरुवेट है, ये पायरुविक एसिड है, ये फिर 3 तरीके से 3 मेथड से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। यदि सपोज ऑक्सीजन मिल गई, देन दैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया। और ये वाला फर्स्ट स्टेप है, वही कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। बिकॉज वाई कॉल्ड एरोबिक? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग्स। एंड दिस इज अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सो माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। इफ सपोज absence of oxygen, that is the one condition, this is occur in the muscles cells of the human, and this pyruvate, you can also say pyruvic acid, will be convert into the lactic acid and plus energy, but very less energy compared to the aerobic respiration। And third condition, that is another second one condition of anaerobic respiration। Now this will be convert into ethanol, यानी C2H5OH H5 plus carbon dioxide plus energy, but here is very less carbon dioxide and very less energy। The best example this process occur in the yeast, that is the example of fungi, and this is present in also in human। यानी दिस इज द क्वेश्चन होगा, वो ये होगा, व्हाट आर द फेट, FAT, फेट, फेट मीन्स फ्यूचर या भविष्य, इस पायरुविक एसिड का क्या फेट हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। इट मीन्स यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये बनेगा, कहाँ होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन नहीं है तब ये बनेगा, ऑक्सीजन नहीं है तब भी ये बनेगा, और ये दोनों की दोनों प्रोसेस है वो कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में केवल फर्स्ट कंडीशन है वही होगी। तो दैट इज अबाउट द फेट। द मसल सेल्स present in the humans, and sometimes very important question related to doing exercise, either feel tiredness। कई बार ऐसा होता है अपन कोई वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्स का गेम खेलते हैं, उस केस में अपने को टायर्डनेस फील होता है,
उसका जो आंसर होता है वो ये है कि ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन द मसल सेल्स बाई विच प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन ट्विस्ट करके आए, वाई टायर्ड या स्पोर्ट्स पर्सन फील टायर्डनेस, या व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स। तो दीज आर रिलेटेड क्वेश्चन। बोर्ड में जो क्वेश्चन होते हैं ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। तो इसमें जब अपनी मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा तो कोई भी पर्सन जब वर्क करेगा तो उसको टायर्डनेस फील होगी। तो ये स्लाइड में पहले डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि फर्स्ट वाला जो पोर्शन है, दिस वन इज द फर्स्ट पोर्शन। इस फर्स्ट पोर्शन में अपन देख रहे हैं तो जनरली फर्स्ट पोर्शन जो पोर्शन है वो रिलेटेड है एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड रेस्ट टू एग्जाम्पल्स हैं, रेस्ट जो टू एग्जाम्पल्स हैं वो रिलेटेड हैं किस पोर्शन से रिलेटेड, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। These are occur in the absence of oxygen, absence, here is also absence, but if presence of oxygen, that is the aerobic respiration, and aerobic respiration only occur in the mitochondria, and those conditions which is only present in the cytoplasm. So that is the fate of oxygen, very important. Fate of pyruvate acid, pyruvate, it means this glucose first of all convert into the 3 carbon and then it will be convert into the 1 carbon, and lactic acid also more than extra carbon compared to the carbon dioxide, also have 3 carbon acid that is accumulate either present in the muscle cells. So before aerobic and anaerobic respiration we discuss this slide. Now we discuss types of the respiration, that is aerobic and anaerobic. So now we discuss first, that is aerobic. Already mentioned number 1 things अपन बात कर ही चुके हैं, किस किस तरीके से क्या क्या प्रोड्यूस होगा, किस किस को क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कैसी कंडीशन हो सकती है, उनकी बात देख ही चुके हैं अपन। फिर भी और डिटेल में अपन बात कर रहे हैं तो इसका फिर से अपन स्टार्टिंग से देखते हैं। टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी, द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, इट टेक प्लेस इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट in the cytoplasm, that is important thing. In the presence of oxygen, and then in the presence of oxygen pyruvate is to convert into carbon dioxide, water, energy in the mitochondria। ये जो अपना फ्लो चार्ट देखा उसमें है, इक्वेशन देख ही ली अपन ने, क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरुवेट ऑल्सो नोन एज पायरुविक एसिड also convert into carbon dioxide and water plus energy, energy generally in the form of the ATP in the presence of oxygen. This process occur in the mitochondria. Now another types of respiration, that is anaerobic respiration. Now we discuss anaerobic respiration, that is anaerobic respiration की बात करेंगे। वो सेकेंड टाइप का रेस्पिरेशन होगा जिसमें ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ अपन जस्ट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में सेकेंड टाइप्स की बात कर रहे हैं, जिसमें सेकेंड टाइप में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन फ्लो चार्ट में बताया, जस्ट ए फेट ऑफ द पायरुविक एसिड। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में मेनली 3 कंडीशन होगी। नंबर 1 थिंग्स अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। नंबर 2 थिंग्स इसमें जो इंटरमीडिएट होगा वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड होगा, वो ऑलवेज कंपलसरी नहीं कि उतना ही अमाउंट प्रोड्यूस करे कार्बन डाइऑक्साइड का और एनर्जी का। और नंबर 3 मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म होगा वो एरोबिक होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, सम बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं, यीस्ट वगैरह, मसल सेल्स जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपना रेस्पिरेशन प्रॉपर करते हैं। take place in the absence of oxygen, that is number 1 things, take place in the absence of oxygen, it produce less energy। number 2 things less energy, यानी वहाँ पर ATP ज़्यादा बनती है, यहाँ पर कम बनती है। the end product are lactic acid, that is the muscles, ethanol, it means ethyl alcohol, carbon dioxide यानी CO2 but very less amount,
and energy, that is also very less amount. It take place in muscle cells and yeast and some bacteria भी इसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं. In anaerobic respiration, in muscle cell, glucose is converted into pyruvate, and in the absence of oxygen, pyruvate will be converted into the lactic acid and energy. यानी पायरुवेट तो ऑलवेज बनेगा, चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो चाहे अब्सेंस हो, यानी उसमें कंडीशन नहीं कि प्रेजेंस होना चाहिए या अब्सेंस होना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स. नाउ द इक्वेशन, वन इज ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द, हियर इज नॉट कंपल्सरी, दैट इज द ऑक्सीजन, मे बी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मे बी. Next one is pyruvate, then lactic acid and energy. This one is cytoplasm, present in cytoplasm, that is in muscle cells, already mentioned. In anaerobic respiration, in yeast cells example, glucose is converted into pyruvate, and in the absence of oxygen, pyruvate in the converted into ethanol, carbon dioxide and energy. Same thing, that is the ethyl alcohol, carbon dioxide, energy. In the absence of energy, here is also not compulsory, that is the absence of presence of energy, maybe absence of energy. And this one is glucose converted into pyruvate, that is presence, either that is present in the both reaction, both process are present in the cytoplasm, but above aerobic respiration present in the mitochondria. So that is anaerobic respiration. The best example yeast, some bacteria, without oxygen they produce energy, less amount of carbon dioxide and other different kinds of product, maybe in the form of lactic acid, ethanol. But any type of respiration, there are the main intermediate product, that is pyruvate, either pyruvic acid, that is the intermediate product. It will be converted into different things, like as this in the presence of oxygen, this in the absence of oxygen, and this in the also absence of oxygen. So this one is pyruvate, you can also say pyruvic acid, that is the intermediate product, and that is the answer of fate of pyruvic acid. You can also say pyruvate. It means this one is 3 carbon and further it will be converted into the 1 carbon molecules in the form of carbon dioxide. So that is basic things, either basic structure, you can also say just a types of respiration, how glucose will be converted into carbon dioxide, water and energy in the different steps and different types of respiration. So that is just a breakdown of the glucose by various pathway. We already discussed this portion, that is important things. ये लैक्टिक एसिड वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड बात थी. इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, नेक्स्ट पोर्शन होगा, उसमें अपन बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, उससे रिलेटेड की बात करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इससे रिलेटेड कुछ डायग्राम अगर होंगे उनकी बात करेंगे, और ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है. थैंक यू वेरी मच.